Hello students, how are you all? I hope you all are good. Now student, today in this session we will discuss other pages of your chapter number 10, tens and hundreds. So all of you please open your page number 140. So now next topic is colorful design. So here as you can see here you have some designs. So here you have one square and this square is equally divided into 10 parts. Okay, 10 equal parts में आपके स्क्वायर डिवाइड हो रहा है. So one part is 1/10, two parts are 2/10, three parts 3/10, four parts 4/10 and so on. What part of this sheet is colored blue? So here one part is colored in blue color. So your answer is 1/10. 10 में से आपका वन पार्ट जो है वो ब्लू कलर से कलर्ड है. So आंसर इज 1/10. What part of the sheet is green? So here we have 1, 2, 3 strips. Okay, green color की हमारे पास 3 strips है. So answer is 3/10. 10 में से 3 parts आपका green color से colored है. Next is which color cover 0.2 of sheets? So 0.2, what is the meaning of 0.2? 10 में से 2 पार्ट्स आपका किस कलर से कलर्ड है. ओके, 2/10 इज इक्वल्स टू 0.2. सो हियर वी हैव 2 येलो स्ट्रिप्स. क्लियर? सो आवर आंसर इज येलो. ओके, येलो का जो आपका फ्रैक्शन है वो है 0.2 और यू कैन से दैट 2.10. नेक्स्ट इज हाउ नाउ लुक एट दिस सेकेंड शीट. अब आप ऐसे ही सेकेंड शीट को देखिए. ओके, सो स्टूडेंट्स इन योर गूगल मीट वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दीज टॉपिक्स. ओके, टेंस एंड हंड्रेड्स. क्लियर? सेम हमने उसमें डिस्कस किया था. सो सेम शीट को अब इन्होंने 100 ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो 10 10 100 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. ओके, नाउ how many boxes are there in all? So here we have 100 boxes. Now next question is each box is 1/100 part of these sheet of the sheet? So yes, या answer is yes. Okay, अगर आप 100 में से एक पार्ट लेते हैं so our fraction is 1/100. 2 parts लेते हैं so 2/100. Okay, so each part is 1/100. So our answer is yes. Next is how many blue boxes are there? So same just like here. Okay, one strip is colored by blue color. Okay, and now blue color is divided into 10 equal parts. So आपके कितने parts blue color से colored हैं? 10 and out of 100. Okay, so 10/100 it's your answer. How many blue boxes are there? So here we will write 10. आप यहाँ पे total 10 blue boxes है. So your correct answer is 10. Next is blue equal to 10/100 of the sheet? क्या आप blue को 10/100 लिख सकते हैं? Yes, because out of 100 10 boxes are colored by blue color. We saw that blue is also equals to 1/10. So here it's 10/100 and here it's 1/10. But both the parts are equal. So why here is 10/100 and here is 1/10? Because here we divided same blocks into 100 equal part and here we divided same blocks into 10 equal parts. Okay, यहाँ पे हमने 100 parts में यहाँ पे 10 लिए हैं. Okay, so 1 का 10 और 100 का 10 एक ही बात होगी. How? Let's check. 10/100 0 0 cancel out, so it's 1/10. So 10/100 is equals to 1/10. Okay, so we can write it 1/100 also, 10/100 also and 1/10 also. Both are same. So we can say that 10/100 is equals to 1/10. Okay, so 10/100 is equals to 0.10 and 1/10 is equals to 0.1. Okay, so if we said that 1/10 is equals to 10/100, so you can say that 0.1 is equals to 0.10. ओके, आपका जो 0.1 है वो 0.10 के इक्वल्स टू में होगा और 0.10 इज इक्वल्स टू 0.100,000. ओके, सो आफ्टर एनी डिजिट इन डेसिमल प्लेस के बाद आप जितने भी ज़ीरो पुट करें इसकी कोई वैल्यूज़ नहीं है. ओके, नेक्स्ट इज थिंक कैन वी राइट 10 पैसा एज 0.1 ऑफ रुपीज़. ओके, क्या आप 10 पैसे को
0.1 लिख सकते हैं, 0.1। सो पैसे को अगर आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, सो यू विल डिवाइडेड बाय 100। ओके, सो आप इसको लिखेंगे 0.10। ओके, 10 divided by 100 is equals to 0.10, and you can write it like that also. 0 cancel out, it becomes 1/10, so it's 0.1. क्लियर? हम इसको दोबारा से समझ लेते हैं। 1/10 is equals to 0.1 and 10/100 is equals to 0.10. Clear? And you can write it 0.1 also. 0 cancel out, ये आपका 1/10 हो जाएगा, and 1/10 को हम 0.1 लिखते हैं, सो इसे आप 0.1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? सो आप 0.1 लिखें, 0.10 लिखें, 0.100 लिखें, बोथ आर सेम, सारी चीज़ें जैसी हैं। नेक्स्ट इज हाउ मैनी बॉक्सेस आर रेड। ओके, आपको चेक करना है कितने बॉक्सेस इसमें रेड हैं। सो हियर वी हैव 10 and 5, total 15 red boxes. So just write here 15. Okay, here we have 15 red boxes. आप इसके आगे 15 लिख दीजिए। What part of sheet is this? So ये शीट का कितना पार्ट है? तो टोटल आपके पास 100 पार्ट्स हैं। 1500 का कितना पार्ट होगा? 15/100. Next question is, can we also write it as 0.15? Yes, 15/100। आप 100 से 15 को डिवाइड कीजिए, 1.5। 2 0 है तो 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा, सो आंसर इज 0.15। सो यस, वी कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो, जस्ट राइट हियर यस। हिंट, रिमेंबर वी wrote 9 पैसा एज 0.99, ओके, रुपीज़। आपने सेम प्रीवियस क्वेश्चन में हमने 99 पैसे को क्या लिखा था? 0.99 है। कैसे लिखा था? पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, 2 0 है तो 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, आंसर इज 0.99 रुपीज़। ओके, next question is, now 3/100 of the sheet is black. Okay, here 3 parts are colored by black color. So now how you can write it? 3/100, out of 100 3 parts are divided by black color, so our answer is 0.03. 2 digits के बाद point आएगा because यहाँ पे 2 zeros हैं, so 1 digit, 2 digit and point, so our answer is 0.03. और आप इसको डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, so our answer is 0.03. Clear? Just fill it in your book. Next question is, how many white boxes are there in the sheet? शीट में कितने white boxes हैं? Okay, 10. Okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. So 10 and 12 is 22. So just write here 22. Out of 100, 22 boxes are colored by white color. Okay. नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ सेकेंड शीट इज वाइट। आपका जो सेकेंड शीट में कितना पार्ट हो गया है वाइट कलर का? सो आउट ऑफ 100, 22 बॉक्सेस आर वाइट, सो आवर फ्रैक्शन इज 22/100. ओके, एंड यू कैन राइट इट लाइक दैट ऑल्सो, 0.22. नेक्स्ट इज मेक योर ओन डिज़ाइन। आपको यहाँ पे अपने खुद के डिज़ाइन बनाने हैं, एंड हिंट्स आर हियर। मेक अ नाइस डिज़ाइन बाय कलरिंग 0.45 parts of the square red. 0.45 means point out 2 digits, it means divided by 100, it means 100 में से आपको 45 कलर करने हैं रेड कलर से। ओके, सो आप कोई से भी 45 पार्ट्स को रेड कलर से कलर कर दीजिए। सो हियर आई एम गोइंग टू कलर दीज पार्ट्स। ओके, 10 10 20. ओके, now 5 5. ओके, सो इट्स 10 20 + 10 30. अब हमारे पास 15 बचे हैं। ओके, सो 3 3 3 3 and 3. ओके, 3 5s are 15. ओके, आप इसमें खुद का पैटर्न बना सकते हैं। नेक्स्ट वन इज यूज 4 कलर, ईच कलर शुड कवर 0.05 ऑफ दिस स्क्वायर। आप करेंगे। ओके, आपको यहाँ पे कोई से भी 4 कलर लेने हैं और हर कलर आपका 0.05, इट मीन्स 100 में से 5 पार्ट्स कलर करता हुआ होना चाहिए। ओके, सो फर्स्ट आई एम गोइंग टू टेक पिंक कलर। ओके, सो 1 2 3 4 5. Now I am going to take green color. 1 2 3 4 and 5. Okay, now yellow one.
1 2 3 4 5 and last one I am going to take purple color 1 2 3 4 5. That is my pattern. Okay, and you can use your own pattern also, so just complete it in your book. Next is पेज नंबर 141 एंड टॉपिक इज स्पोर्ट्स डे. सो एक स्पोर्ट्स डे में कुछ बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं. द स्कूल एट मालमपुर हैज़ इट्स स्पोर्ट्स डे. द फर्स्ट 5 चिल्ड्रन इन द लॉन्ग जंप आर. अब लॉन्ग जंप में जो बच्चे टॉप 5 में आते हैं, टीना 3.50 मीटर, मीना 4.05 मीटर, रिहाना 4.50 मीटर, अनु 3.05 मीटर एंड Amina 3.35 meter. So what is the meaning of 3.50 meter? 3 meter 50 centimeter. 4.05 meter, 4 meter 5 centimeter. 4 meter 50 centimeter. 3 meter 5 centimeter. 3 meter 35 centimeter. Okay. Now the question is, who is the winner in the long jump? Okay, long jump का winner कौन था? So our answer is रिहाना. रिहाना की सबसे लॉन्ग जंप है 4 मीटर 50 सेंटीमीटर. So your answer is रिहाना. Just write here रिहाना. Okay. Here we have some conversation also. Tina jumped 3.50 meter. That is 3 meter 50 centimeter. Okay, 3 बार आपका कंप्लीट है, आपका 3 नंबर 1 प्लेस में है. सो इट्स 3 मीटर एंड पॉइंट के बाद आपका 50 है. सो मीटर के बाद सेंटीमीटर. सो इट्स 50 सेंटीमीटर. बट हाउ फार डिड अनु जम्प? सो सेम हम अनु के लिए देखेंगे. 3.05 इट मीन्स 3 मीटर 5 सेंटीमीटर. दैट इज योर करेक्ट आंसर. Now come to the next page and that is your page number 142. Write the names of the first, second and third winner on the stand. Stand में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड विनर का आपको नाम लिखना है. सो फर्स्ट विनर आपके रिहाना है. ओके, सो फर्स्ट पे आप लिखेंगे रिहाना. अब सेकंड नंबर पे कौन है? 4.50 रिहाना एंड 4.05 मीना. सो सेकंड इज मीना. सो इन सेकंड कॉलम जस्ट राइट हियर मीना. नेक्स्ट आफ्टर मीना 4 आपका हो चुका है. अब थर्ड में चेक करेंगे. सो हेयर इज टीना. टीना का सबसे ज़्यादा है, ये आपका 3 मीटर 50 सेंटीमीटर है. बाकी 3 मीटर 5 मीटर 3 मीटर 35 सेंटीमीटर है. सो नेक्स्ट वन इज टीना. टीना थर्ड नंबर पे है. ओके, फर्स्ट रिहाना, देन सेकेंड मीना एंड थर्ड टीना. सो इन थर्ड स्टैंड जस्ट राइट टीना. ओके, नाउ नेक्स्ट, डू यू रिमेंबर दैट 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर? आप सभी को पता है 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं. सो 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर. ओके, सो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. ओके, आप सभी को ये चीज़ें पता है. वी ऑल्सो राइट 1 सेंटीमीटर एज. सो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. सो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो होगा 1.01. क्लियर? सो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? 0.01. So our answer is we can write it as 0.01 meter also. Next is 3 meter 45 centimeter. अब आपको इसको कन्वर्ट करना है मीटर्स में. So 3 meter 45 centimeter it's 345. Okay, 3 meter 45 centimeter. So if you write it in मीटर्स, तो 3 तो आपका ऑलरेडी मीटर में है. ओके, अब 45 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मीटर में. सो वी विल डिवाइडेड बाय 100. सो वी विल गेट 0.45. जब हम 45 को 100 से डिवाइड करेंगे सो हमारा आएगा 0.45. ओके, सो 3 मीटर ऑलरेडी मीटर में है, 45 को कर रहे हैं तो 0.45 आ रहा है. सो दोनों को ऐड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा 3.45. सो जस्ट राइट हियर 3.45 मीटर. Next is 99 centimeter. So if you want to convert it into meter, divided by 100, so you will get 0.99. So here is your answer, 99.99 meter. 99 centimeter is equals to 0.99 meter. Next is 1 meter and 5 centimeter. So 5 centimeter को अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको डिवाइड कीजिए 100 से. 2 0 है, 2 डिजिट्स के बाद आपका आ जाएगा पॉइंट. क्लियर? अब आप इसमें 1 ऐड करेंगे सो ये हो जाएगा 1.05. ओके, जब आप 1 में ऐड करेंगे 0.05 सो इट बिकम्स 1.05. सो हियर इज योर आंसर 1.05
meter. 1 meter 5 centimeter equals to 1.05 meter. Next is how big can you get आफ्टर ब्रीथिंग आउट 1.52 मीटर. आपके यहाँ पे एक पहलवान जी हैं, ये जब ब्रीथ आउट मतलब सांस जब बाहर छोड़ते हैं, क्लियर. सो इनके जो साइज़ है वो हो जाता है 1.52 मीटर. इनके चेस्ट साइज जो है वो हो जाता है 1.52 मीटर. लेकिन जब ये सांस लेते हैं, हवा अंदर भरते हैं, सो इनकी जो चेस्ट है वो हो जाती है 1.82 मीटर. ओके. अब बताइए कि इनकी चेस्ट के साइज़ में क्या डिफरेंस है. ओके. सो पहले है 1.82 सांस अंदर लेने पे, सांस छोड़ने पे है 1.52. ओके. नाउ चेक द डिफरेंस. 2 - 2 0, 8 - 5 3, 0.1 - 1 0. सो इट्स 0.30. सो आवर आंसर इज 0.30 मीटर. 0.30 मीटर ये डिफरेंस आ रहा है इनकी चेस्ट के साइज़ में. नेक्स्ट इज डू दिस फॉर योर सेल्फ एंड फाइंड द डिफरेंस. अब सेम एक्टिविटी आप अपने लिए भी कर सकते हैं. ब्रीथ इन में आपके चेस्ट साइज़ क्या है, ब्रीथ आउट में आपका चेस्ट साइज़ क्या है, उसका डिफरेंस आप निकाल के चेक कर सकते हैं. नेक्स्ट पार्ट बी. यू हैव टू ग्रो 45 सेंटीमीटर मोर टू रीच 2 मीटर हाइट. सो इनकी हाइट नापने के बाद इनकी जो मम्मा हैं वो कहती हैं कि तुम्हें 45 सेंटीमीटर और बढ़ना है 2 मीटर होने के लिए. नाउ जस्ट फाइंड आउट कि दिनेश की हाइट कितनी है. क्लियर. सो 2 मीटर में आपके होते हैं 200 सेंटीमीटर. क्लियर. 1 मीटर 100 सेंटीमीटर. सो 2 मीटर इज इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर. अब उनको 200 सेंटीमीटर होने के लिए 45 सेंटीमीटर और चाहिए, यानी कि अभी उनकी एक्चुअल हाइट कितनी है उसमें से आप 45 सेंटीमीटर सब्ट्रैक्ट कर दीजिए. क्लियर. उन्हें होना है 2 मीटर, उन्हें हाइट चाहिए 2 मीटर. 2 मीटर के लिए अभी 45 का डिफरेंस बाकी है, उनको 45 सेंटीमीटर और ग्रो होना है. सो 200 में से 45 सेंटीमीटर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको उनकी अभी की हाइट मिल जाएगी कि अभी वो कितने हैं. और जब वो 45 और हो जाएंगे तो 2 मीटर हो जाएंगे. ओके. सो जस्ट सब्ट्रैक्ट 45 सेंटीमीटर फ्रॉम 200 सेंटीमीटर. 10 - 5 5, 9 - 4 5 and 1 - 0, so it's 1. So answer is 155 सेंटीमीटर. ओके. एंड जब आप इसको मीटर में लिखेंगे तो हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, सो आएगा 1.55. सो आवर आंसर इज 1 मीटर 55 सेंटीमीटर. इट मीन्स उनकी अभी हाइट जो है वो है 1 मीटर 55 सेंटीमीटर. एंड अगर वो उसमें 45 और ऐड कर दे तो वो 2 मीटर के हो जाएंगे. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज योर प्रैक्टिस टाइम 143. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज मनी फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज. हैव यू सीन एनी नोट्स और कॉइन्स यूज्ड इन एनी अदर कंट्री. क्या आपने कभी किसी और कंट्री के नोट्स और कॉइन देखे हैं. सो यस, मैंने नेपाल के, आपके अमेरिका के एंड जर्मनी के इनके नोट्स देखे हैं. आपने जो जो देखे हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं. नेक्स्ट इज शिवम बैंक हैज़ अ चार्ट टू शो अस हाउ मैनी इंडियन रुपीज़ वी कैन गेट व्हेन वी चेंज द मनी ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़. सो शिवम के पास एक चार्ट है, ओके, जिसमें ये मेंशन है कि अगर आप उस कंट्री के मनी को लेकर आते हैं तो आपको कितने इंडियन रुपीज़ मिलेंगे. सो कोरिया में आपकी चलती है मनी वॉन, और अगर आप वहाँ से एक वॉन लेकर आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलेंगे 0.04 रुपीज़, यानी कि आपको 1 रुपये भी नहीं मिलेंगे. ओके. श्रीलंका में चलता है श्रीलंकन रुपीज़. सो वहाँ के एक श्रीलंकन रुपीज़ की कीमत है इंडिया के 0.37 रुपीज़, यानी कि 37 पैसा. ओके. नेपाल के रुपीज़. तो नेपाल के रुपीज़ अगर आप एक नेपाली रुपीज़ लेकर आते हैं सो उसकी कीमत यहाँ पर है 0.63 रुपीज़, यानी कि 63 पैसा. हांगकॉन्ग डॉलर, अगर आप वहाँ से एक हांगकॉन्ग डॉलर लाते हैं तो यहाँ उसकी कीमत है 5 रुपीज़ 10 पैसा. साउथ अफ्रीका रेंट, अगर आप वहाँ से एक साउथ अफ्रीकन रुपीज़ लाते हैं सो यहाँ पे उसकी कीमत है 5 रुपीज़ 18 पैसा. चाइना युआन, अगर आप एक चाइनीज़ रुपीज़ लेकर आते हैं तो उसकी कीमत है यहाँ पे 5 रुपीज़ 50 पैसा. ओके. यूएई दिराम, अगर आप यूएई से लेकर आते हैं सो आपको वहाँ से पे करने होंगे 10 रुपीज़ 80 पैसा फॉर 1 दिराम. एंड यूएसए $1 39 रुपीज़ 70 पैसा. जर्मनी यूरो 58 रुपीज़ 30 पैसा. इंग्लैंड पॉन्ड 77 रुपीज़ 76 पैसा.
एंड ये आपकी जो रेट लिस्ट है ये 15 फरवरी 2008 के अकॉर्डिंग है। ओके, अभी आपके और प्राइजेस इंक्रीज हो चुके हैं। नाउ वी हैव सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट, सो लेट्स चेक। फर्स्ट इज द मनी ऑफ विच कंट्री विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। किस कंट्री की मनी इंडियन रुपीज़ में सबसे ज़्यादा है। ओके, सो ये है आपका इंग्लैंड। इंग्लैंड में आपको 1 पाउंड के 77, ओके, इंग्लैंड का 1 पाउंड यहाँ के 77 रुपीज़ 76 पैसे के बराबर है। क्लियर, सो आवर आंसर इज इंग्लैंड। एंड स्टूडेंट्स, दिस प्रैक्टिस टाइम यू हैव टू डू इट इन योर नोटबुक। आप पेज नंबर 143 मेंशन करेंगे, अपना प्रैक्टिस टाइम लिखेंगे और इन क्वेश्चंस को अपनी नोटबुक में करेंगे। सो हियर इज योर सॉल्यूशन। ओके, द मनी ऑफ इंग्लैंड विल कॉस्ट द मोस्ट इन इंडियन रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिथुन अंकल इन अमेरिका हैड सेंड हिम 10 US$। उनके अंकल उनको 10 US$ यहाँ से भेजते हैं एज अ गिफ्ट। मिथुन यूज 350 रुपीज़ फॉर स्कूल ट्रिप। हाउ मच मनी वॉज लेफ्ट विद हिम। और वो 350 रुपीज़ उसमें से खर्च करते हैं अपनी स्कूल ट्रिप में, तो उनके पास कितने पैसे बचे हैं। ओके, सो मनी रिसीव्ड बाय मिथुन इक्वल्स टू 10 US$। ओके, उनको 10 US$ मिलते हैं। नाउ 1 US$ इज इक्वल्स टू 39.70 रुपीज़। 1 US$ की जो कीमत है 39 रुपीज़ 70 पैसे हैं। सो 10 US$ की कितनी होगी, 10 मल्टीप्लाई बाय 37, 39.70 रुपीज़। और जब आप 39.70 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट 397 रुपीज़। ओके, जब आप 39 रुपीज़ 70 पैसे को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, सो यू विल गेट 397 रुपीज़। अब उसमें से उन्होंने 350 तो स्पेंड कर दिए हैं। क्लियर, सो अब कितने बचे, 47 रुपीज़। सो राइट नाउ उनके पास कितने पैसे हैं, 47 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मजीद्स फादर इज़ वर्किंग सऊदी अरेबिया। मजीद के फादर सऊदी अरेबिया में वर्क करते हैं। ही गेट 1000 सऊदी रियाल एज सैलरी। वहाँ से उनको 1000 सऊदी रियाल एज अ सैलरी मिलते हैं। एंड अरुण's फादर हु इज़ वर्किंग इन श्रीलंका। अरुण के फादर श्रीलंका में वर्क करते हैं और वहाँ से उनको श्रीलंकन रुपीज़ 2000 श्रीलंकन रुपीज़ मिलते हैं। हु गेट्स मोर इंडियन रुपीज़ एज सैलरी। अब इंडिया में उनमें किसको सबसे ज़्यादा सैलरी मिलती है। ओके, सो आपके जो मजीद हैं उनके फादर कहाँ काम कर रहे हैं, सऊदी अरेबिया। ओके, सऊदी अरेबिया में काम कर रहे हैं। सो मंजीत फादर सैलरी इज़ 1000 सऊदी रियाल। सो आपके 1 रियाल है 10 रुपीज़ 52 पैसे के। ओके, मजीद फादर सैलरी इज़ 1000 सऊदी रियाल। सो 1000 मल्टीप्लाई बाय 10.52, क्योंकि आपका एक है 10 रुपीज़ 52 पैसे का। तो अब आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 10,520 रुपीज़। ओके, आपका एक सऊदी रियाल है आपका 10 रुपीज़ 52 पैसे का। ओके, सो 1000 कितने के होंगे, 1000 से डिवाइड कर दीजिए 10 रुपीज़ 52 पैसे को, 1052 और आपके 3 0 आगे आ जाएंगे। ओके, अब पॉइंट लग जाएगा आपका 2 डिजिट्स के बाद। सो आपका फाइनल आंसर है 10,520 रुपीज़। आप इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं 10.52 से 1000 को। ओके, नेक्स्ट इज़ अरुण के जो फादर हैं, अरुण के फादर श्रीलंका में वर्क कर रहे हैं, वहाँ मिलते हैं उनको 2000 रुपीज़। क्लियर, सो 1 श्रीलंकन रुपीज़ की जो कॉस्ट है वो है 0.37। सो 1000 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 37 से, 2 7s are 14, कैरी 1, 2 3s are 6 and 7 is 74। आपके 3 zeros आ जाएंगे। ओके, सो आपका ये था 0.37, तो 2 डिजिट्स के बाद आपका पॉइंट आ जाएगा। सो आवर फाइनल आंसर इज़ 740 रुपीज़। ओके, जब आप 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.37 से, सो आपका आंसर आएगा 7 4 and 3 zeros। 2 डिजिट्स के बाद हम पॉइंट लगा लेंगे 2 0 के बाद, सो आंसर इज 740। ओके, सो एक को मिल रहे हैं 10,520 रुपीज़, एक को मिल रहे हैं 740 रुपीज़। तो किसको ज़्यादा मिल रहे हैं, यस, मंजीत फादर। मंजीत फादर गेट मोर इंडियन रुपीज़। ओके, आवर आंसर इज मंजीत के फादर को ज़्यादा इंडियन रुपीज़ मिल रहे हैं। Now our next question is Leena auntie bought a present for her from China. It cost 30 yuan. लीना आंटी अपने लिए चाइना से एक प्रेजेंट लेती हैं, का कॉस्ट है 30 yuan. Find what is cost in Indian rupees. So now you have to convert it Indian rupees. Now 1 yuan is 5 rupees 50 paisa.
So what is the value of 30 yuan? It's 30 multiplied by 5.50. So just multiply 30 by 5.50. 5 3s are 15, 5 carry 1, 5 3s are 15 and 1, 16 and 2 zeros, okay, and we have to mark the point after 2 zeros, that is point. So your answer is 165 rupees. So the cost of the present is 165 rupees. Now next question is, आस्था wants some Hong Kong dollar and won. आस्था कुछ Hong Kong dollars and won लेना चाहती है. Now the question is, how many won she can change for rupees 4 and for rupees 400. So 4 rupees में वो कितने वॉन चेंज कर सकती हैं and 400 rupees में वो कितने वॉन्स चेंज कर सकती है. So the cost of one, so the value of 1 won is 0.04 rupees. एक वॉन की जो कीमत है इंडिया में वो है 0.04. It means 4 पैसा. सो 4 रुपीज़ में वो कितने वॉन ले सकती हैं? तो 1 वॉन इज इक्वल्स टू 0.04. इट मीन्स 4 पैसा एंड 4 रुपीज़ इज इक्वल्स टू 400 पैसा. क्लियर? सो 4 रुपीज़ में वो कितने वॉन ले सकती हैं? 400 पैसे को डिवाइड कर दीजिए 4 पैसे से. सो आवर आंसर इज 100. इट मीन्स वो 4 रुपीज़ में 100 वॉन ले सकती है. नेक्स्ट इज 400. सो 400 में आपके कितने पैसे होंगे? 400 मल्टीप्लाई बाय 100, सो दैट इज़ 40,000. सो 400 में हमारे कितने पैसे होंगे? 40,000. एंड एक युआन आपका कितने का है? 4 पैसे का. सो आपके 40,000 पैसे में कितने युआन आएंगे? 4 1 4 0 0 0. सो इट्स आंसर इज 10,000. सो आपके 400 रुपीज़ में आस्था 10,000 वॉन ले सकती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, how many Hong Kong dollar can she change for rupees 508. 508 रुपीज़ में वो कितने Hong Kong डॉलर चेंज कर सकते हैं? इट मीन्स 508 रुपीज़ में उन्हें कितने Hong Kong डॉलर मिल सकते हैं? सो 1 Hong Kong डॉलर इज इक्वल्स टू 5.10. इट मीन्स 5 रुपीज़ 10 पैसा. सो 508 रुपीज़ में कितने Hong Kong डॉलर आएंगे? सो 508 को डिवाइड कर दीजिए 5.10 से. सो 508 divided by 5.10. Divide 508 by 5.10. It means 5.10. You will get 99.61. आपका डेसिमल पॉइंट शिफ्ट होगा, ऊपर 2 zeros ऐड हो जाएंगे. सो 510 से 50,800 को डिवाइड कीजिए, आपका आंसर होगा 99.61. Now next question is, किरण went shopping with rupees 200. किरण 200 रुपीज़ लेके शॉपिंग के लिए जाती हैं. लुक एट द बिल. अब यहाँ पे आपका बिल मेंशन है. द शॉपकीपर फॉरगेट टू पुट द पॉइंट करेक्टली इन द प्राइसेस. अब शॉपकीपर प्राइस में करेक्ट जगह पर पॉइंट लगाना भूल जाते हैं. पुट द पॉइंट इन द करेक्ट प्लेस एंड फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ बिल. अब आपको एग्जैक्ट पॉइंट लगाना है एंड फाइंड आउट करना है बिल कितना बना है. सो फर्स्ट द कॉस्ट ऑफ अ सोप इज़ 1250. सो क्या आपका एक साबुन 1250 का हो सकता है? नो. सो यहाँ पर आपके शॉपकीपर पॉइंट लगाना भूल गए हैं 12 एंड 50 के बीच में. सो दैट इज़ योर करेक्ट आंसर 12.50. नेक्स्ट इज ग्रीन ग्राम. 1 kg ग्रीन ग्राम क्या आपकी 5025 की होगी? नो. सो यहाँ पे आपका आंसर होगा 50.25. 50 रुपीज़ 25 पैसे. नेक्स्ट इज 25 ग्राम टी. सो 25 ग्राम टी क्या आपकी 2725 रुपीज़ की होगी? नो. सो द करेक्ट आंसर इज 27 रुपीज़ 25 पैसे. नेक्स्ट इज 1 liter कोकोनट ऑयल. हेयर द कॉस्ट इज 6000. सो इट्स नॉट पॉसिबल. सो आवर आंसर इज 6 रुपीज़. क्लियर? तो जब हम एग्जैक्ट प्लेस पे पॉइंट लगाएंगे सो ये हो जाएगा आपका 12.50, 50.25, 27.25 एंड 60 रुपीज़. एंड व्हेन यू एड इट यू विल गॉट 150 रुपीज़. इट मीन्स उनका बिल आया है 150 रुपीज़ का. सो दैट्स योर करेक्ट आंसर. पॉज दिस वीडियो एंड डू इट इन योर notebook. Now next topic is which city is cool. So here you have one map and all the cities with their temperature is mentioned here. Srinagar temperature is 8.1 degrees Celsius, Jaipur 23.2 degrees Celsius, Bhopal, Calcutta, Guwahati, Chennai, Thiruvananthapuram and Mumbai. Temperature in each city was noted at 3 p.m. on 16 January 2008. 16 जनवरी 2008 को दिन के 3 बजे जो टेम्परेचर नोट किया गया वो यहाँ पर आपका मेंशन है. नेक्स्ट
Now we have some questions which are based on this data. Which place had the highest temperature at 3 p.m? Which place is the coolest at that time? किस प्लेस का टेम्परेचर सबसे हाई था एंड किस प्लेस का टेम्परेचर सबसे कम था? सो हाईएस्ट टेम्परेचर आपका यहाँ पे शो कर रहा है मुंबई, दैट इज 35.1 डिग्री सेल्सियस, एंड लोएस्ट टेम्परेचर इज एट श्रीनगर, इट्स 8.1 डिग्री Celsius. So that's your correct answer. Mumbai had the highest temperature and Srinagar is the coldest place at that time. Next question is, how much higher is the temperature in Mumbai from that in Srinagar? Srinagar से कितना ज़्यादा टेम्परेचर है मुंबई का? So मुंबई के टेम्परेचर से श्रीनगर के टेम्परेचर को कर देंगे सब्ट्रैक्ट और आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा. टेम्परेचर इन मुंबई इज 35.1, टेम्परेचर इन श्रीनगर इज 8.1. सो मुंबई में टेम्परेचर है 35.1, श्रीनगर 8.1. जस्ट सब्ट्रैक्ट 8.1 फ्रॉम 35.1. 1 minus 1 0, 15 minus 8 7, and 2 का 2. So our answer is 27. Okay, so the difference between the temperature of Mumbai and Srinagar is 27 degree Celsius. Next question is, how many degree will the temperature need to rise for it to reach 40 डिग्री सेल्सियस इन तिरुवनंतपुरम? तिरुवनंतपुरम के टेम्परेचर को 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए कितने टेम्परेचर की ज़रूरत है? सो 40 डिग्री सेल्सियस से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तिरुवनंतपुरम के टेम्परेचर को एंड यू विल गेट योर आंसर. नाउ द टेम्परेचर इज़ 33.5 डिग्री सेल्सियस. ओके, एंड 40 डिग्री होने के लिए कितने सेल्सियस की ज़रूरत है? सो सब्ट्रैक्ट 33.5 फ्रॉम 40. सो 10 minus 5 5, 9 minus 3 6, and 3 minus 3 0. So our answer is 6.5. Okay, 6.5 डिग्री सेल्सियस अगर और टेम्परेचर हो जाता है तिरुवनंतपुरम का, सो वो हो जाएगा 40 डिग्री सेल्सियस. Now next question is, how much lower is the temperature of Calcutta from that Chennai? चेन्नई से कितना कम है कैलकाटा का टेम्परेचर? सो इन चेन्नई द टेम्परेचर इज 29.9 एंड कैलकाटा इज 26.6. सो चेन्नई के टेम्परेचर से माइनस कर दीजिए कैलकाटा का टेम्परेचर. सो हेयर इज योर आंसर. 29.9 minus 26.6 is equals to 3.3 डिग्री सेल्सियस. इट मीन्स कैलकाटा का चेन्नई से जो टेम्परेचर है वो 3.3 डिग्री सेल्सियस कम है. Our next question is, the temperature in these cities was also noted at 3 am. So same cities का आपका टेम्परेचर 3 am यानी कि अर्ली मॉर्निंग एट 3 भी नोट किया गया है. लुक एट द टेबल एंड आंसर द क्वेश्चंस. अब आप 3 am की टेबल को चेक कीजिए और गिवन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच प्लेस हैड द लोएस्ट टेम्परेचर एट 3 am? किस प्लेस का सबसे कम टेम्परेचर था 3 am में? सो एज यू कैन सी हियर अगेन इट्स श्रीनगर. सो श्रीनगर का टेम्परेचर सबसे कम था. इमेजिन योर सेल्फ टू बी देयर एंड डिस्क्राइब हाउ इट कुड फील. आप इमेजिन कीजिए जब आप श्रीनगर में होंगे और टेम्परेचर 1.3 होगा तो आप कैसा फील करेंगे. Here is your answer. The temperature is 1.3 degree Celsius, means it is very cold and the water in pipe froze into ice. We will have to wear woolen cloth and sit near fire. तो हमें गर्म कपड़े पहनने होंगे और आग के सामने बैठना होगा. Now next and the last question is, what is the difference between the temperature at 3 p.m. and 3 am in Chennai and Bhopal? चेन्नई में 3 am and 3 pm में एंड भोपाल में 3 am और 3 pm में टेम्परेचर का क्या डिफरेंस था ये आपको फाइंड आउट करना है. सो हियर इज योर आंसर. एट चेन्नई टेम्परेचर एट 3 pm इज 29.9 डिग्री सेल्सियस एंड टेम्परेचर एट 3 am is 21.1 डिग्री सेल्सियस. डिफरेंस इज 29.9 minus 21.1 डिग्री सेल्सियस एंड दैट इज 8.8 डिग्री. जब आप 29.9 से 21.1 सब्ट्रैक्ट करेंगे सो आपका आंसर होगा 8.8. ओके, नाउ द टेम्परेचर इन भोपाल इज 25.9 एंड at 3 am is 9.8. 25.9 and 9.8. So 9 minus 8, that is 1. 15 minus 9, it's 6 and 1 का 1. So it's 16.1. It means भोपाल में 3 am and 3 pm में जो डिफरेंस है वो है 16.1.
16.1 degree Celsius. Student, that's the last page of your chapter number 10, tens and hundreds. So with the help of this video, just complete your book and notebook work. For any confusions, just comment me in the comment section. If you want any kind of help, directly contact to me. And for proper understanding, please just watch this video at least 2 times. For any confusion, comment me in the comment section, directly contact to me. So that's it for today. I hope this video is helpful to all of you. Watch this video at least 2 times, and for any confusion, directly contact to me and use your comment section also. Thank you so much. Thanks for watching this video. Have a nice day. Take care. Bye bye.